Okay, Priyanka ma'am, are you fully vaccinated? Yes, sir. Okay, ma'am, so you can remove your mask. Okay. Thank you. Okay. Priyanka ma'am, Yes, sir. can you please elaborate your introduction? Okay, yes, sir. My name is Priyanka Mohan Kamble. I'm from Navi Mumbai. I have done my graduation in BSCIT in 2014 from Karvavir Bhaurao Patil College, Vashi. After that, I have done IITA, diploma in travel and tourism from Costa Training Institute, Sanpada. Okay, And then I've worked for almost 2 years in AITSL, a ground handling agency. From there, I developed my communication skills and my ability to work in a team. And yeah, that's it. And my hobbies are watching sitcoms and writing journals. Acha ma'am, tell me something about your family. Okay, so I live with my parents. My father was working in Air India earlier. He's retired now, and my mother is a housemaker. I have two siblings. Elder sister, she is MD in pathology, and the younger brother is he has done graduation in BMS and he's currently working at TELUS International. When was Air India established? Established in 1932, I guess. Who is the current chairman? Current chairman Vikram, Mr. Vikram Dev. And who was the founder? Founder R.D. Ratan Tata. R.D. Sorry, Ratan R.D. Tata. Sorry, J- J.R.D. Tata. Sorry. JRD Tata. Yeah. Okay. If a primary channel of the bank is known as branch, Huh. what is the alternative delivery channels of bank? Primary is a branch, then alternative is Have you heard about mobile banking? yes. Have you ever heard about debit card? Yes. ATM? Yeah. Okay, so that is actually the alternative delivery. Okay. So what does ATM stand for, ma'am? Automatic telemetry. Acha. So what according to you is MICR code? MICR. No, sir. Sorry. MICR you don't know. Do you know about SWIFT code? SWIFT. I know the full form of SWIFT. Okay. Can It you is, elaborate? yes, Society for Worldwide Worldwide Interbank Telecommunication. Financial Telecommunication. Financial telecommunications. Okay. Yes. When do we celebrate Telecommunication Day? International Telecommunication Day. National. You have done your information technology. Yes, sir. You had a subject called as Linux. Hmm. Who was the founder of Linux? It is an operating system, Yes. open operating system. Who is the founder? Sorry. Do you know Mark Zuckerberg? Yes. He has Founder. recently lost $200 billion Yeah. of net worth due to the interruption of Due to the what got interrupted? Yes. Acha. Ma'am, please elaborate the history of Reserve Bank of India according to you. Reserve Bank of India. Okay. RBI. It was formed under the RBI Act 1934. Good. Formed on Foundation Day was 1st April 1935. Good. Formed in Calcutta. Fine. And after that it shifted to Mumbai, the center, and Was it Mumbai that time or Bombay that time? sorry, Bombay. 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 Because there was no Maharashtra, Yeah. so Bombay was the Bombay. presidency. Yes. And then, who was the first governor after independence? After independence, it was Mr. C.D. Deshmukh, C.D. Deshmukh. And the current one is? Mr. Shakti Kanta Das, The rank is? 25th. Who is the Chief Justice of India right now? Mr. N.V. Ramanna, Okay. Vice President of India? Vice. I remember it. Just a moment. Fine. He is also the chairman of Rajya Sabha. Mr. Venkaiah Naidu. Venkaiah Naidu. Yes. Fine. Vice President of India. Who is the President of India? Ramnath Kovind. That's very easy. And who are the two women's union ministers in India? Two women. Women, Miss Smriti Irani. That is one. And another one is Mr. Nirmala Sitharaman. Nirmala Sitharaman. Nirmala Sitharaman, we all know she is the finance minister because she is in news recently because of the budget 2022. Who is Smriti Irani? She was previously in HRD. And now she is? Now she is in textiles. Okay. Yeah, and also one more was there. Are you sure she is in textile or she is in some other
One just a Portfolio. moment. Child and women, Women and child development. Women and child development. Then who is looking after education nowadays? It is Ministry of Education. Who is looking Mr. I remember his name, just a sec. He was previously looking after petrol. Yeah, just a second. Ministry of Education, Mr. Devendra. Dharmendra Pradhan. Devendra Fadnavis is the name. In which state of India is election going to be held, ma'am? Okay, Bihar. उत्तर प्रदेश इज डिफरेंट, बिहार इज डिफरेंट. उत्तर प्रदेश में अभी इलेक्शन होने वाला है मैम, ठीक है, याद रखिए. डिफेंस फोर्सेस में से आप किसी भी एक डिफेंस फोर्स के चीफ का नाम बताइए मैम. ओके. आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, कोई भी एक बताइए मैम. ओके. जस्ट अ सेकंड. हाँ मैम. अच्छा मैम, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नाम बताइए जो अभी हमारे बीच नहीं रहे, कुछ एक्सीडेंट में वारदात हो गई थी. हाँ, मिस्टर जस्ट अ सेकंड. I am getting confused. जनरल बिपिन हाँ, बिपिन रावत. बिपिन रावत सर. ओके फाइन. मैम, डू यू नो व्हाट इज यूपीएससी? यूपीएससी सिविल सर्विसेज. तो फुल फॉर्म पता है आपको उसका? नहीं. नहीं पता. अच्छा मैम, चाइना नेबरिंग कंट्री मानते हो इंडिया की? वो हमेशा क्लैश करते रहता है इंडिया से, मानते हो? रिसेंटली न्यूज़ में आया था कि अरुणाचल प्रदेश में कुछ ऐसे सिटीज़ है जहाँ पर वो अपनी कॉलोनीज बांध रहा है. तो व्हाट वाज द नंबर ऑफ कॉलोनीज चाइना हैज बिल्ट इन अरुणाचल प्रदेश? और वहाँ के बच्चे लोग स्कूल में जो है वो कॉलोनी को अपने चैप्टर्स में पढ़ रहे कि अरुणाचल प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ चाइना. तो कुछ कॉलोनीज के नाम पता है या कुछ सिटी जो चाइनीज नेम हो गए हैं? नहीं. अच्छा मैम, गलवान घाटी का क्लैश पता है आपको? हाँ, 2020 में हुआ था. कहाँ है गलवान घाटी? नहीं. नहीं पता. अच्छा, लद्दाख का नाम सुने हो? अच्छा, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है क्या स्टेट है अभी इंडिया का? अभी चेंज हो गया है, बट यूनियन टेरिटरी है ना. तो अभी लद्दाख को कौन देख रहा है मैम? एडमिनिस्ट्रेटर कौन है वहाँ का? एडमिनिस्ट्रेटर, यानी वो गवर्नर्स बैठते हैं ना जनरली, तो कौन अभी एडमिन कर रहा है वहाँ पे? कितने टोटल यूनियन टेरिटरी है मैम इंडिया में? यूनियन 9 है सर. लेकिन वो दमन एंड दीव तो मर्ज हो गया, दादरा नगर हवेली मर्ज हो गया ना. हाँ. तो 8 हो गए ना. हो गए. तो अभी दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, उसका एक कॉमन कैपिटल बताइए ना. दादरा नगर हवेली का. दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, इतना बड़ा नाम है, ठीक है. उसका एक कॉमन कैपिटल बताइए. दमन. वेरी गुड. दमन. कौन देख रहा है उसको? दमन दीव को, दादरा नगर हवेली. मिस्टर प्रफुल्ल पटेल. वेरी गुड. महाराष्ट्र का फॉर्मेशन कौन से ईयर में हुआ था मैम? महाराष्ट्र फॉर्मेशन. ओके, ठीक है. महाराष्ट्र में अभी चीफ मिनिस्टर कौन से पार्टी से है? शिवसेना. शिवसेना का फॉर्मेशन कब हुआ था? फाउंडर का नाम? बाला साहेब ठाकरे. वेरी गुड मैम. अच्छा मैम, आप बताइए मेरे को, ये जो बजट 2022 था उसमें बहुत सारे हम लोगों ने देखे टर्मिनोलॉजीज बहुत हार्ड यूज हुआ है. तो एक कोई हिंदी वर्ड है बहुत फेमस हुआ है 2022 बजट में बहुत. हाँ, यानी ऐसा बोला जा रहा है कि 2047 का जो हमारा इंडिया रहेगा उसका हम लोग सेंटेनरी ईयर मनाने वाले हैं. तो ये 2022 का बजट कुछ तो है, आप बताइए. कुछ अमृत वाला वर्ड? अमृतकाल. क्या? कल अमृतकाल. अमृतकाल. कल नहीं होता है वो. यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? कल. अमृतकाल यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क में. वेरी गुड. न्यूयॉर्क कौन से कंट्री में आता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? नॉर्थ अमेरिका. साउथ में ब्राजील आता है क्या? साउथ में पेरू आता है क्या? तो पेरू का मेरे को कैपिटल बताइए ना. उरुग्वे. नहीं सॉरी, वो कंट्री है दूसरी. आप बताइए. बुर्किना फासो का क्या है कैपिटल? बुर्किना फासो का ओ से नाम है, बोलो.
ये पूछो और सेल्फ हेल्प ग्रुप मैम सुने हो कभी? हाँ ऐसी चीज़। हाँ, तो महिला बचत गट बोलते हैं इसको। कुछ बताइए मैम, इसका जन्म कहाँ से हुआ, मोहम्मद यूनुस कौन थे, कुछ बताइए मैम। मोहम्मद यूनुस, he's from Bangladesh, right? वेरी गुड। हाँ, so he has started this thing for मतलब ग्रामीण लोगों के लिए बैंकिंग उन्होंने शुरू किया था। ग्रामीण के वुमेन। हाँ, मतलब वुमेन के लिए अच्छा। एंड इन रूरल एरियाज स्पेशली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है वो नॉट ओनली इन रूरल इवन इन अर्बन है। एरियाज बट जो एकदम अंडर डेवलप्ड एरियाज होते हैं वहाँ पर उनका कम्युनिटी होता है बेसिकली एंड दे ट्राई टू ब्रिंग देयर कम्युनिटीज अप, मतलब स्कूल्स हो, एजुकेशन हो, ये सारी चीज़ों में काम करते हैं वो, और गवर्नमेंट भी उनको उस टाइप का हेल्प मतलब लोन्स वगैरह देती है। बराबर। तो माइक्रो फाइनेंस क्या होता है फिर? माइक्रो फाइनेंस भी सो माइक्रो फाइनेंस और सेल्फ हेल्प ग्रुप इज वन एंड द सेम? नो सर नहीं है। अच्छा ठीक है, माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? माइक्रो फाइनेंस भी लो लेवल में जाकर लोन्स वगैरह देती है। कितने तक लोन देती है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 50,000। स्टार्ट्स फ्रॉम 50,000। माइक्रो लोन मीन्स क्या होता है? स्मॉल अमाउंट का लोन या स्मॉल जो मिनिमम लोएस्ट लोन दिया जाता है किसी कम ओके। मैम ये कंप्यूटर के जन्मदाता किसको कहते हैं मैम? चार्ल्स नाम था उनका, आप आगे बताइए। चार्ल्स नहीं। अच्छा मैम, आपने ऐसा कुछ Y2K कुछ सुना है? कुछ प्रॉब्लम आया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, Y2K नहीं सुना आपने? अच्छा मैम, प्राइवेट की के बारे में कुछ बताइए। प्राइवेट Y2K का फुल फॉर्म क्या है? तब भी Y2 एंड देन K, रैंडम गैस। 2K मीन्स क्या? 3K मीन्स क्या? 1000। हाँ, तो Y ईयर 2000 अच्छा। है ना, कुछ प्रॉब्लम आया था, आप पढ़ना। चल, इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाते हैं? 10th में मार्च को मनाते हैं ना Sorry, मैम? मार्च। हाँ, तो 8 मार्च को मनाते हैं। तो अब तो फिर कुछ रहा ही नहीं, नेशनल पूछोगे नहीं। नेशनल वुमेन डे कब मनाते हैं? नेशनल वुमेन्स डे नहीं, आपका बर्थडे कब आता है मैम? 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर। आपके बर्थडे के 2 दिन बाद कुछ मनाया जाता है पूरे दुनिया में, 24। और वो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा अच्छा, जिसमें आपने बोले थे उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशंस का। हाँ, तो यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। अच्छा, ठीक है, अब पूरा बर्थडे का मंथ याद करके जाना एग्जाम में। अगला क्वेश्चन मैम आपके लिए। आपने कहा कि आपके वाइस प्रेसिडेंट का नाम है वेंकैया नायडू, आपने कहा प्रेसिडेंट का नाम है रामनाथ कोविंद। मैम, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पता है, सेबी। जिसको हम वॉच डॉग ऑफ द कंपनी कहते हैं, तो इसका चेयरमैन कौन है अभी फिलहाल? सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई। जहाँ पे अभी बैठे हैं हम लोग, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में और कौन से स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर है? कंप्यूटराइज्ड स्टॉक एक्सचेंज 1995, इनकॉर्पोरेटेड 1996। आप बताइए। शॉर्ट फॉर्म NSE, आप बताइए। नेशनल सिक्योरिटीज कॉर्पोरेशन। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है मैम वो, एनएससी। NSE। BSE का मतलब क्या होता है? बैचलर इन साइंस। सॉरी BSE, सॉरी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा मैम, आपने कभी फॉरेन ट्रेड में डेप्रिसिएशन का मतलब पढ़े हो? डेप्रिसिएशन नहीं, डीवैल्यूएशन नहीं। अच्छा मैम, आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या लगता है, इंडिया में क्या चल रहा है? डेफिसिट में चल रहा है कि सरप्लस में चल रहा है? डेफिसिट है सर। डेफिसिट है। क्या ज़्यादा है इंडिया का, एक्सपोर्ट ज़्यादा है या इंपोर्ट ज़्यादा? इंपोर्ट ज़्यादा। इंपोर्ट ज़्यादा। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को क्या कहते हैं मैम? नहीं,
कोई बात नहीं मैम, मेरे को खाली बताइए मैम, इंडिया का अभी फॉरेन अफेयर मिनिस्टर कौन है? फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर यानी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, जो कुछ साल पहले सुषमा स्वराज संभालते थे, अभी कौन संभाल रहा है मैम? कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है मिस? सेबी, मनी मार्केट को आरबीआई आरबीआई रेगुलेट करता है, कैपिटल मार्केट को सेबी। मैम आपने कभी प्रधानमंत्री जन धन योजना सुने हो? हाँ सर। कुछ बोलो मैम। प्रधानमंत्री जन धन योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बनाई Very गई थी। इट वाज स्टार्टेड इन बाय मोदी गवर्नमेंट इन 2014। उसके पहले नहीं थे कुछ? हाँ, सबसे फर्स्ट की कौन स्टार्ट किया था उसको? मोदी जी के पहले। मनमोहन सिंह, मिस्टर मनमोहन तो सिंह। तब का नाम क्या था उसका? तब का आई थिंक इट वाज राजीव गांधी। नहीं? अच्छा तुक्का है, ऐसा थोड़ी होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है मैडम, जरा बताइए। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब गिविंग बैंकिंग सर्विसेज टू दोज एरियाज जो जिनको बैंकिंग मतलब हैबिट्स नहीं है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट या तो फिर लोन्स या तो फिर उनका पेंशन्स या कोई स्कीम्स में वो लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो वैसे एरियाज में वैसे लोगों को रूरल एरियाज या पुअर। तो लीड बैंक स्कीम और फाइनेंशियल इंक्लूजन दोनों सेम हो गया कंसेप्ट? लीड बैंक स्कीम पता है? नहीं सर। नहीं पता? लीड बैंक स्कीम वाज लॉन्च बाय हूँ? अच्छा ठीक है। जब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब फॉर्म हुआ था, इनका जो वर्किंग एरिया था वो कहाँ से कहाँ तक था? ब्रिटिश इंडिया, आई मीन टू से ब्रिटिश इंडिया कहाँ से कहाँ तक था? तो जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्हेन वाज इट फॉर्म एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कौन से कंट्री का वो करेंसी हैंडल करती थी? and it has also worked as a central bank for that specific country itself. So can you name those two countries? Okay, disinvestment का मतलब पता है? अभी तो आपका हेयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, क्या हुआ वो? टाटा हैज बॉट एयर इंडिया। हाँ, तो क्या हुआ फिर वो? It is called as what? डिसइन्वेस्टमेंट। It is also called as what? Acquire. Privatization. हाँ, privatization. Getting the point? Yes. Huh? Yes, yes. Okay. Ma'am, you stay in Navi Mumbai, right? Yes. You have come for the interview in Bandra Kurla complex. Ma'am, there is a APMC in Navi Mumbai. Yes. What do you mean by APMC? अच्छा, you just know Vashi, you don't know about APMC. I know Okay. about agency, but अच्छा, किससे रिलेटेड है? किसान से रिलेटेड है? हाँ, तो किसान के अभी जो मसले चल रहे थे, जहाँ पे सिद्धू बॉर्डर पे वो लोग बैठे थे, तो ये क्या फार्म बिल का क्या मसला था फार्म मैम? बिल से रिलेटेड था। क्या था मैम? MSP जो है मिनिमम सपोर्ट सपोर्ट प्राइस। प्राइस, तो उससे रिलेटेड 3 जो लॉज थे ओके वो थोड़े से देवर कंट्रोवर्शियल। ओके एक तो था फार्म सर्विसेज बिल जो था वो, और एक नहीं, ठीक है मैम। मैम, प्लानिंग कमीशन का नाम सुना आपने? हाँ, अच्छा, देश में अभी तक कितने प्लान बने मैम ये प्लानिंग कमीशन के तहत? नहीं, अच्छा मैम। नीति आयोग का नाम सुना है मैम? नीति का फुल फॉर्म बताइए मैम। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंडिया। उनके जो चेयरमैन रहते हैं वो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं इंडिया के। वाइस चेयरमैन कौन है मैम? अमिताभ कांत। नहीं, वो तो CEO 6-7 साल पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। मैम, ये जो प्लानिंग कमीशन है इसी का नाम जो है नीति आयोग हुआ है, इतना याद रखो, ठीक है? अच्छा, अगला सवाल मैम। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस,
इसके मिनिस्टर कौन है अभी? मिस्टर नरेंद्र ने। वेरी गुड। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में माइक्रो स्मॉल और मीडियम का मतलब क्या है? कितना लाख से कितना लाख या कितना करोड़ से कितना करोड़ अकॉर्डिंग टू यू? टर्नओवर जो उनका Yes, ईयरली yes. होता है, माइक्रो में इट इज़ 5 करोड़ तक। माइक्रो में? अच्छा, आगे? 5 करोड़ है, और हाँ, आगे? मीडियम इज नहीं? अच्छा मैम, कोई बात नहीं। मैम मेरे को बताइए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये नोट कौन से 4 जगह में प्रिंट करती है इंडिया में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन सी 4 जगह पे नोट प्रिंट करती है? कोई भी एक जगह? नहीं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो करेंसी नोट है उसके ऊपर कितने लैंग्वेजेस है मैम? लैंग्वेजेस। नहीं? इंडिया में कितने ऑफिशियल लैंग्वेज है मैम? कोई बात नहीं। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कॉइन्स बनाती है जिसे हम मिंटिंग कहते हैं, कौन सी जगह पे कॉइन्स बनाती है मैम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? नहीं? अच्छा, कोई बात नहीं। PSL का मतलब क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। कितना परसेंट है वो? ओके। स्टार अलायंस का मतलब क्या है? स्टार अलायंस इज मतलब ये एक एसोसिएशन है एयरलाइंस का, जहाँ पर वो लोग मतलब टू ब्रिंग ऑल द एयरलाइंस टू अ बेटर प्रोवाइड सर्विस, इसलिए, और एक प्रॉपर नॉर्म्स जो सारे एयरलाइंस फॉलो करे, इसलिए स्टार अलायंस बनाया गया ओके। है। 1 रुपी नोट पे किन का साइन होता है? फाइनेंस सेक्रेटरी का। क्यों? नहीं बता। ओके। मैम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री बताइए ना कुछ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI की हिस्ट्री, पहले इट वाज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। मतलब 3 बैंक्स थे जो प्रेसिडेंसी बैंक्स थे, उनको मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना 1921 में। उसके बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया गॉट नेशनलाइज्ड इन 1955, मतलब इट गॉट कन्वर्टेड इनटू SBI। Very good. हाँ, 1 जुलाई 1955 को SBI वाज फॉर्म्ड। कौन से ऐसे 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे मैम? बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बॉम्बे। अच्छा, ये थे तीनों को प्रेसिडेंसी बैंक कहते थे। हाँ। फिर 19 कौन सा ईयर? 21 में दे में गॉट ये इंपीरियल बने। इंपीरियल। फिर 1955 में ये SBI बने। SBI, हाँ। तो कौन से ऐसे 8 एसोसिएट थे SBI के जो मर्ज हो गए 2017 में? सब कुछ मर्ज हो गया SBI के अंदर। 2017 का मर्जर भी बताओगे तो चलेगा। 2017 में एसोसिएट बैंक्स और भारतीय महिला बैंक ये मर्ज हुए थे तो SBI में। एसोसिएट बैंक के कुछ उदाहरण दो मैम। नहीं। नेम्स ऑफ द बैंक्स, एसोसिएट बैंक्स। नहीं? ठीक है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये किसके कहने से फॉर्म हुआ था? कमीशन? Yes, Hilton Commission. Hilton, Young yeah. Hilton Okay. Commission. Who was the first person who has said that कि there must be a central bank in our country? Can you name the person? Governor General. आगे. Governor General. Warren Hastings. Okay, Hastings. ठीक है. इंडिया के कुछ नेबर्स बताओ ना। एक तो मैंने बता दिया चाइना, नेपाल, भूटान। और वही आपने पहले बोले चाइना, नेपाल। आगे चलो। भूटान भी गुड। पाकिस्तान, Good one. बांग्लादेश गुड वन। और म्यांमार। बस. म्यांमार। अरेबियन सी में कोई नहीं है और? श्रीलंका। हाँ। और श्रीलंका है, उसके बाद मालदीव्स है। सार्क में टोटल कितने कंट्रीज आती है? सार्क में अच्छा, पहले सार्क का फुल फॉर्म बता दीजिए। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ओके। कंट्रीज की थी क्या क्या है उसमें? उसमें कंट्रीज है, इंडिया है, और मालदीव्स भी है, एंड श्रीलंका है। ये आजू बाजू की कंट्रीज इंडिया के? मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान। और
हाँ मतलब सी में तो इतने और 3 है ना। नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया क्या है? नेशनल सॉन्ग नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग इज सेम? डिफरेंस है ना? Difference है। तो बताइए, एंथम तो बता दो। जन गण मन। हाँ तो सॉन्ग बताओ, अब सोचो। हिंट दो। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। वंदे मातरम। हाँ अरे क्या फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको, हमको बताइए। हाँ मैम बताइए मेरे को। गॉड। बैंकिंग करस्पॉन्डेंट का मतलब पता है आपको? बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट जो फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड है, मतलब बताइए। जो जिनको काम दिया जाता है कि वो हाँ 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 वेरी गुड, बताइए सही है। हाँ, जो ऐसे रूरल एरियाज में जाए या बैंक अकाउंट्स क्रिएट करे या छोटे स्कीम्स में जो भी है गवर्नमेंट के उसमें इन्वेस्ट करे लोग, तो आप बन सकते हो? हाँ बन सकते हो आप? अच्छा, कुछ पैसे चाहिए रहते हैं उसके लिए? हाँ कितने? नहीं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हो रहा है आपने कहा। उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है? उत्तर प्रदेश का 1 मिनट बोलिए। हाँ नहीं मैं लिख नहीं रहा हूँ आंसर, आप बोलिए। प्रयागराज तो नहीं है। नहीं है, वेरी गुड। मुस्कुराइए आप, फिल इन द ब्लैंक्स। नहीं, लखनऊ है मैम। लखनऊ। एयर इंडिया में आप काम करते थे ना मैम पहले? सुनिए मैम, गौर से सुनिए। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, वहाँ पर एक एयरपोर्ट है ओके। बराबर, उसका नाम पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट है। उसका दूसरा नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर नहीं? अच्छा, लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, लक्षद्वीप में एक एयरपोर्ट है, उसका नाम क्या है? जाने दो। हमारे एक प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, वो एयरपोर्ट का है। एक बहुत महान पर्सनालिटी थी जिनका जन्मदिन 12 जनवरी को रहता है, जिनके नाम पे नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। हाँ मेजर ध्यानचंद। नहीं, स्वामी विवेकानंद। Youth Day। तो स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी के नाम का एयरपोर्ट कहाँ है? स्वामी विवेकानंद का साउथ। हाँ, पूछ रहे हो बता रहे हो? नहीं? अच्छा मैम, अपने आप जहाँ रहते हो नवी मुंबई, और अभी हम जहाँ बैठे हैं बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे कहीं आसपास में कोई रिवर है, नदी है कोई? मीठी नदी है। मीठी नदी कौन से समुद्र में जाके मिलती है? अरेबियन सी। अरेबियन सी को कौन कौन से स्टेट लगते हैं? स्टेट्स महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, गुजरात। और राजस्थान, महाराष्ट्र और राजस्थान में गुजरात। समुद्र नहीं है। महाराष्ट्र एंड गुजरात एंड साउथ कर्नाटका, केरला, गोवा। एक स्टेट और, हाँ गोवा। गोवा। इंडिया का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। वेरी गुड। इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का है ना? वेस्ट बंगाल नहीं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में। मैम, इंडिया का सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन कौन से स्टेट में? अभी तो आंसर दिया। अच्छा, उत्तर प्रदेश, दैट इज द आंसर। ओके। अच्छा, नेटिव प्लेस का है? माझं नेटिव प्लेस सांगली है, तासगाव। अच्छा, सांगली है। इट इज वेल नोन फॉर व्हाट? सांगली इज वेल नोन फॉर शुगर केन। दैट्स इट? शुगर केन, शुगर फैक्ट्रीज। कितनी शुगर फैक्ट्री है? इट हैज द हाईएस्ट, बट नंबर नाही पता. ओके. नॅशनल पार्क कोणतं तिथे? सांगलीमध्ये. सांगली इज नोन एज अ टर्मरिक सिटी ऑफ महाराष्ट्र इटसेल्फ. हाय की नाही? 30 शुगर फैक्ट्रीज है मैम वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली, उससे ज़्यादा भी हो सकती है 30 शुगर फैक्ट्रीज. एक बात और बताइएगा मैम, कौन सी रिवर के लिए जाना जाता है सांगली? हाँ बता, कृष्णा मेरे गांव में ही है.
गाँव में आप कौन सा, क्या नाम है आपके गाँव का? मतलब सांगली में ही है मम्मी का मम्मी का। अच्छा मैम, ये कृष्णा नदी जो है इसका सोर्स कहाँ पे है मैम? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर। अभी फिलहाल वहाँ पे तो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है टेम्परेचर। मैम कोई ट्रिब्यूटरी फॉर्म करती है क्या कृष्णा? अच्छा, महाराष्ट्र से निकल के कहाँ जाती है? और महाराष्ट्र से दूसरे फर्दर नीचे स्टेट में जाती है, कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में। और उसके बाद में और तमिलनाडु एंड देन सी में। कौन सा? इंडियन ओशन। क्या बात है कि बे ऑफ बंगाल? हाँ, नहीं, इंडियन ओशन। बे ऑफ बंगाल नहीं। डेल्टा फॉर्म करती है कि एस्चुरी? सॉरी, अच्छा, डेल्टा का मतलब पता है? मतलब डेल्टा बनाते हैं ना, हाँ, जैसे सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है इंडिया के पास। तो जो कृष्णा नदी है हाँ। वो डेल्टा फॉर्म करती है क्या नहीं? कृष्णा नदी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है? महाबलेश्वर से निकली, महाबलेश्वर में क्या, कौन सा फल उगता है? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी। एक स्ट्रॉबेरी पे कितने स्ट्रॉबेरीज रहते हैं अप्रोक्सीमेटली? वो जो दाने रहते हैं ना मैम, उसको स्ट्रॉबेरी बोलते हैं। वो फल अच्छा, तो बेरी। कम से कम आप कितने बेरीज रहते हैं उस पर वो कभी काउंट करना है अप्रोक्सीमेटली। ऐसा कोई मान्यता नहीं है कि उसमें नहीं आया आंसर, तो कोई बात नहीं। मैम डेल्टा फॉर्म करता है कृष्ण, याद रखना, ठीक है? आइलैंड्स बनाता है जगह जगह पे, आंध्र प्रदेश में याद रखना। चलो मैम, थैंक यू मैम, ऑल गुड, Yes. विल कॉल इट अ डे।